Okay, so in the last class, we have learned about the heating effect of electric current and Joule's law. अगर आपको याद हो ना बच्चों, तो Joule's law कुछ ऐसा हमने डिराइव किया था कि heating effect or heat produced is equal to I square RT. This is what we have derived. The heat produced in time t is equal to I square into RT, और इसे हमने कहा था Joule's law. कहा था ना जूल्स लॉ H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, राइट. चलिए अब हम देखेंगे कि इन विच केसेस दिस हीटिंग इफेक्ट इज एप्लीकेबल. अब नॉर्मली क्या होता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस द हीट प्रोड्यूस इज अनडिजायरेबल. मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो हीट प्रोड्यूस है वो अनडिजायरेबल है, बिकॉज वी नेवर एक्सपेक्ट कि हम वायर में से करंट पास करें और वायर गर्म हो जाए. वी नेवर एक्सपेक्ट दैट, right? Because when the wire will get heat up due to the electric current, the properties of the wire will change, right? When you pass the current from some wire, obviously the heat is going to produce as per this formula, and because of that heat, properties of the wires will change. In that case, the heat is undesirable. In most of the cases, we don't require the heat, but what we can do, the heat is mandatory. It will automatically produce as soon as the current will start passing from the wire. But there are some application in which this heat is your requirement. There are some application in which this heat is our requirement. The heat is desirable, and that is basically electric iron, right? Electric kettle, okay, then fuse. So these all are the devices in which the heat produced is desirable, and we are going to use that heat produced in effective way. Okay, so I will just read this statement by statement from the textbook. The generation of the heat in a conductor is an inevitable sequences of electric current. We cannot control that heat, right? Heat produce होने ही वाला है, वो है ना थैनोस का स्टेटमेंट है ना. थैनोस क्या कहता है, मैं वो अनहोनी हूँ जिसे कोई नहीं टाल सकता. पता है ना, मैं वो अनहोनी हूँ जिसे कोई नहीं टाल सकता. ये ऐसा ही है, हीट जो है ना वो ऐसा ही है. हीट ऐसा है जिसको कोई नहीं टाल सकता. करंट है तो हीट प्रोड्यूस होने ही वाला है. इन मैनी केसेस इट इज अनडिजायरेबल एज इट कन्वर्ट्स यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट. तो ये जो हीट है ना बच्चों, ये मोस्टली कैसा है, अनडिजायरेबल है. मोस्टली हीट इज अनडिजायरेबल बिकॉज इट वेस्ट यूजफुल electrical energy. It wastes useful electrical energy in the form of heat, right? तो मोस्टली तो ये कोई काम का है नहीं, बट आगे देखते हैं. चलिए, in electric circuit the unavoidable heating can increase the temperature of the components and alter their properties. तो ये हीट क्या करेगा बेटा, ये जो हीट है ना ये क्या करेगा, इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंपोनेंट. इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द कंपोनेंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड alter their property, alter their properties, right? चलिए, however, heating effect of electric current has many useful applications. ये तो हो गया उसका undesirable thing, but most of the cases the heat are also desirable also, right? So what is the application of that heat? Right? So the basically used are laundry iron, electric toaster, electric oven, then electric kettle and the electric heater, right? तो ये सारे ऐसे डिवाइसेज है जहाँ पे हम करंट पास करा के गर्मी का यूज़ करते हैं, राइट? तो कौन कौन सा ऐसे डिवाइसेज है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है? इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, kettle, right? Then heater, oven. So this all uses the heat produced by the electric current. Okay, chaliye, the electric heating is also used to produce the light. Yes, electric heating can also
प्रोड्यूस लाइट। ये कैसे, लाइट कैसे प्रोड्यूस करेगा? तो आप जो बेसिकली बल्ब देखते हो ना, CFL VFL नहीं है, वो पुराने जो बल्ब आते हैं ना येलो कलर वाले, तो उसको आप ध्यान से देखना बच्चों। उस बल्ब के अंदर ना देयर बी अ बेस और एक ऐसा वायर होता है पतला सा, एकदम पतली सी वायर होती है, और बल्ब जब उड़ जाता है ना तो देखना है वायर जो है ना वो टूट जाता है तो बल्ब उड़ जाएगा फिर। सो दिस इज बेसिकली द वायर मेड अप ऑफ अ टंगस्टन। किसका होता है बच्चों? ये वायर होता है बेसिकली मेड अप ऑफ टंगस्टन। इससे क्या होगा? व्हेन द करंट विल पास फ्रॉम द बल्ब, अल्टीमेटली करंट विल पास फ्रॉम दिस वायर, and this wire has ability to produce a huge amount of heat as the current pass from it, right? ये बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा करंट पास कराने पे, ओके? अब ये जो हीट प्रोड्यूस हुआ है ना वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होगा कि इट विल स्टार्ट एमिटिंग द लाइट। ये जो फिलामेंट का वायर है ना वो इतना गर्म हो जाएगा कि इट विल स्टार्ट एमिटिंग द लाइट। अगर आप कभी आयरन को देखोगे ना मेल्ट होते हुए, तो यू विल सी जब आयरन मेल्ट होता है ना तो वो चमकने लगता है, उसमें से लाइट निकलने लगती है। देखा है आयरन को मेल्ट होते हुए? ओके, आयरन मेल्ट होते हुए देखना, उसमें से ना लाइट निकलती है। इट विल अपीयर ऑफ पर्टिकुलर कलर, आपको एक पर्टिकुलर कलर दिखेगा उसके अंदर, येलो कलर दिखेगा, फिर और गर्म करो तो वाइट बनेगा, और गर्म करो तो ब्लू कलर एमिट करेगा, राइट? तो इसी तरह से ये टंगस्टन वायर को जब करंट पास होगा ना, टंगस्टन वायर इतना गर्म हो जाएगा कि उसकी वजह से उसमें से क्या निकलना चालू हो जाएगा? द लाइट विल स्टार्ट एमिटिंग फ्रॉम दैट। ओके, लेट्स सी। Okay, electric heating is also used to produce the light as an electric bulb. Here, the filament must retain as much as of heat generated as it possible so that it gets very hot and emits the light. तो ये जो फिलामेंट है ना टंगस्टन का बना हुआ, फिलामेंट मतलब वायर, फिलामेंट इज वायर। तो ये टंगस्टन के फिलामेंट का काम है जितना भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है उस सारे हीट को होल्ड करना है उसको, ओके? एंड अल्टीमेटली वो इतना गर्म हो जाएगा कि इट विल स्टार्ट एमिटिंग द लाइट। तो ये टंगस्टन क्या करेगा? इट होल्ड ऑल हीट एंड इट बिकम सो हॉट दैट इट स्टार्ट एमिटिंग द लाइट। ओके, तो यहां पे हीट एनर्जी जो बन रहा है ना वो यूजफुल है हमारे लिए लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। चलिए आगे। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट मस्ट नॉट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। अभी एकदम इसको गर्म तो एकदम होना है। टंगस्टन को एकदम, आप कभी बल्ब को यूज़ करोगे ना, वो येलो वाले बल्ब, 5 मिनट यूज़ करना, उसके बाद आप बल्ब को पकड़ भी नहीं पाओगे, इतना गर्म हो जाता है। देखा है ना, पता होगा, ये तो कॉमन चीज़ है ना। तो ये वायर में इतनी ज़्यादा गर्मी पैदा होने वाली है ना, बट इंपॉर्टेंट थिंग इसे वायर मेल्ट नहीं हो जाना चाहिए। भाई वायर मेल्ट हो गया तो फिर काम का क्या? सो दिस टंगस्टन वायर शुड हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इट मस्ट हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट नहीं हो जाना चाहिए भाई गर्म करने पे, मेल्ट हुआ तो फिर काम क्या उसका? कुछ भी नहीं। इट शुड हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, राइट? और जैसे कि टंगस्टन जो है ना उसका मेल्टिंग पॉइंट है 3380 डिग्री सेल्सियस। कितना? टंगस्टन हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3380 डिग्री सेल्सियस। इतना जबरदस्त उसका मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब टंगस्टन जो है वो मेल्ट होने वाला नहीं है, उसको कितना भी गर्म कर लो। चलिए आगे देखते हैं। ओके, एंड दिस टंगस्टन इज यूज्ड फॉर मेकिंग द बल्ब फिलामेंट। द फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड एज मच एज पॉसिबल यूजिंग द इंसुलेटिंग सपोर्ट्स, राइट? तो ये जो फिलामेंट है ना वो थर्मली आइसोलेट होना चाहिए। थर्मली आइसोलेट का मतलब है कि यहाँ पे जो भी गर्मी पैदा हो रही है ना वो गर्मी बाहर कम जानी चाहिए, क्योंकि ये वायर को उस गर्मी को यूज करके ही लाइट एमिट करना है, राइट? दैट मीन्स ये जो आजू बाजू का जो मटेरियल है ना, बेसिकली जो गैस होगा ना उसके अंदर कोई ना कोई इनर्ट गैस भरा होता है। क्या भरा होता है? अंदर कोई ना कोई इनर्ट गैस भरा होता है, राइट? सो दिस फिलामेंट मस्ट बी इन थर्मली इंसुलेटेड। फिलामेंट मस्ट बी इन थर्मली इंसुलेटेड मीडिया। चलिए आगे देखते हैं, राइट? चलिए, द बल्ब्स आर यूजुअली फील्ड विद द केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस। कौन सा गैस यूज करेंगे यहाँ पे? इनर्ट गैस में नाइट्रोजन या आर्गन गैस यूज करो, बिकॉज दिस गैसेज आर केमिकली इनर्ट। अगर कोई और गैस भरा तो क्या प्रॉब्लम होगा पता है? कि अगर ये फिलामेंट एकदम गर्म हुआ तो आजू बाजू का गैस भी गर्म होगा, और अगर कोई और गैस है तो वो गैस केमिकल रिएक्शन चालू कर देगा टेम्परेचर बढ़ने से। दैट इज व्हाट वी डोंट रिक्वायर।
and that is why we have to fill this inert gases either nitrogen or either argon in the bulb. Okay, आगे देखते हैं, चलिए. Okay, most of the power consumed by the filament appear as a heat, but a very small of it appears in the form of radiation. Right? तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जितना भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है ना, राइट, जितना भी टोटल आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने वाले हो ना, उस इलेक्ट्रिक एनर्जी में से मोस्ट ऑफ एनर्जी तो हीट के फॉर्म में ही निकल जाएगा, और बहुत ही कम फ्रैक्शन ऐसा होगा जो क्या बनेगा, लाइट बनेगा. राइट, सो हियर आई कैन राइट वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी convert in light, and rest of all wasted as a heat. Rest of all wasted as a heat, and very small fraction will be converted in the light. So this is how the bulb works. Right, अब मैं आपको पूछूंगा बल्ब के फिलामेंट का मटेरियल कैसा होना चाहिए. बल्ब के फिलामेंट का मटेरियल कैसा होना चाहिए, देखना बच्चों, बल्ब फिलामेंट कैसा होना चाहिए. बल्ब फिलामेंट, सबसे पहली बात, उसको बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस करना है. राइट, टेम्परेचर तभी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा जब उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो. सो दिस फिलामेंट मस्ट हैव हाई रेजिस्टेंस. High resistance, or you can say high resistivity. It should have high resistivity. The filament should have high resistivity, right? And it should have high melting point. One more thing, filament material should be chemically inert. So these are the properties of the material of the bulb filament. राइट, तो ये पहला आपका हो गया बच्चों एप्लीकेशन ऑफ द हीट, कि जो करंट पास करने से हीट प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसको आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, आप बल्ब में उसको यूज़ कर सकते हो. ठीक है, चलिए इसके बाद एक और टॉपिक आएगा फ्यूज़ का, बट उसके पहले आप इसको कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं. ओके, सो द इलेक्ट्रिक फ्यूज़, आपके हर एक के घर पे ना ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ कॉमन है, होता ही है इलेक्ट्रिक फ्यूज़. सो फ्यूज़ बेसिकली प्रोटेक्ट द डिवाइसेस from the extra current or over voltage you can say. कई बार ये होता है कि सप्लाई लाइन से ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा वोल्टेज आ जाता है या एक्स्ट्रा करंट आ जाता है, एंड इन दैट केस इट इज़ पॉसिबल कि आपका जो भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, टीवी हो या फिर आपका रेफ्रिजरेटर हो, पॉसिबल है कि ये जो चीज़ें हैं ना वो सर्किट उसकी ख़राब हो जाए बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा पोटेंशियल, राइट, या एक्स्ट्रा करंट. उस सर्किट के अंदर जो भी वायरिंग किया होगा, वायरिंग डैमेज हो सकता है. सो हमें क्या करना है, वो एडिशनल करंट वो डिवाइसेस तक पहुंचे उसके पहले उनको रोक देना है, और वो काम किया जाता है बाय द फ्यूज़. राइट, तो फ्यूज़ का काम है बेसिकली टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस connected with it when there is extra voltage or over current flows in circuit. Circuit in the sense of supply line. चलिए किस तरह से ये फ्यूज़ काम करेगा देख लीजिए. तो फ्यूज़ के लिए बेसिकली एक पोर्सेलिन का या किसी और सिरामिक मटेरियल का बेस होता है, और इज अ पोर्सेलिन और सिरामिक बेस. राइट, उसके ऊपर दो मेटल के लीड्स होते हैं. What are this? This is the metal leads. Right? और इस दो मेटल लीड के बीच में एक पतली सी वायर बांधी जाती है. ओके, एंड दिस वायर इज बेसिकली फ्यूज वायर, और ये नॉर्मली बना होता है एल्यूमिनियम का, लेड का, या ऐसा कोई मटेरियल होगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो अप्रोप्रिएट हो. राइट, कैसा हो इसका फ्यूज वायर. अगर मैं राइट दिया,
फ्यूज वायर मस्ट हैव, चलिए दो चीज़ें बच्चों, फ्यूज वायर कैसा होना चाहिए। सबसे पहला फ्यूज वायर जो है इट शुड हैव गुड कंडक्टिविटी, इट शुड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट शुड बी हैविंग द गुड कंडक्टिविटी। गुड कंडक्टिविटी मीन्स इट शुड हैव लो रेजिस्टेंस, इसलिए वो मेटल का या एलॉय का बना होता है। इट शुड हैव लो रेजिस्टेंस। और दूसरी बात, इट शुड हैव अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट। क्या होगा उसके पास बेटा? उसके पास होगा अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट। इससे क्या फ़ायदा है? इससे फ़ायदा ये है कि ये सर्किट के अंदर से या फ्यूज़ में से जब करंट पास होगा, ये करंट को पास होने देगा। एंड वी नो दैट जब करंट पास होगा तो अल्टीमेटली ये फ्यूज़ का वायर भी गर्म होने वाला है। ओके, अब जब यहाँ पे कभी सर्किट में ज़्यादा करंट आ गया और इस वायर में से जब ज़्यादा करंट जाएगा तो ऑब्वियसली इट विल प्रोड्यूस मोर हीट, राइट, एंड दैट हीट इज गोइंग टू बी सफिशिएंट टू बर्न दिस वायर। वो जो एडिशनल हीट प्रोड्यूस होगा ना, जब एक्स्ट्रा करंट आ गया तब जो एडिशनल हीट प्रोड्यूस होगा वो हीट सफिशिएंट है इस वायर को मेल्ट करने के लिए। और ये वायर मेल्ट हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक हो गया मतलब करंट अब आगे जाने वाला नहीं है। तो एक बात ध्यान रखना है, फ्यूज़ जो है ना उसको ऑलवेज सीरीज़ में कनेक्ट करना है। कहाँ कनेक्ट करना है? फ्यूज़ को ऑलवेज सीरीज़ में कनेक्ट करना है, ताकि जब फ्यूज़ के से करंट आना बंद हो जाए ना तो करंट आगे जाए ही ना। ओके, सो वी राइट हियर फ्यूज़ इज कनेक्टेड in series with the devices needed protection. You have to keep it in mind. फ्यूज को सीरीज में रखना है. Okay, I will write when extra current flows in circuit, the fuse wire gets melted, which stop current to flow further. मतलब आपका जो डिवाइस है वो सेफ है, आपका जो डिवाइस है वो कैसा है? सेफ है, आगे करंट जाने वाला नहीं है। फ्यूज़ वहीं से करंट को रोक देगा, तो करंट आगे जाएगा ही नहीं। इज इट क्लियर? तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, करंट की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होता है ना वो हीट को हम यूज़ कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्यूज़। आपके घर पे भी कभी फ्यूज़ उड़ जाए ना, राइट, कभी भी आपका घर पे वायरिंग या सारे इंस्ट्रूमेंट बंद हो जाए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होगा, फ्यूज़ उड़ गया होगा। तो नो नीड टू कॉल द इलेक्ट्रिशियन, कोई काम नहीं है इलेक्ट्रिशियन को बुलाने का। यू कैन जस्ट टेक आउट द फ्यूज़, उसका वायर जो है वो टूट गया होगा। ओके, जस्ट जॉइन द वायर एंड इंसर्ट द फ्यूज़ अगेन, योर डिवाइसेस विल स्टार्ट अगेन। खाली खाली आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे ना तो इधर उधर देखेगा दो चार चीज़ें और लास्ट में फ्यूज़ करके जाएगा और बोलेगा ये हुआ था वो हुआ था और 200-300 रुपये निकाल के चला जाएगा। सो बेटर इज़ कि फ्यूज़ आप खुद ही निकाल लो, वायर अंदर होगा, खाली टूट गया होगा वायर, तो यू जस्ट जॉइन द वायर, ओके, एंड यू कैन जस्ट इंसर्ट द फ्यूज़ अगेन, डिवाइसेस विल स्टार्ट। चलिए कॉपी करिए। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक पावर। सो बेसिकली पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हो, राइट। सो पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, power is rate of doing work, or you can also say power is the rate of consumption of energy. Power is rate of doing work. आपका इंस्ट्रूमेंट जो वर्क करेगा वो that is obviously going to because of expense of energy. So you can also call power is rate of consumption of energy. Power is what? Power is rate of consumption of energy. Okay, you must have learned in the formula of the heating effect of electric current. आपने डिराइव किया था बच्चों के पावर P कितना होता है? V इंटू आई होता है। कितना होता है पावर P? होता है आपका V इंटू आई। ओके, आप ओम्स लॉ यूज करो, V इक्वल टू कैन बी रिटर्न एज आई आर, तो ये फॉर्मूला बनता है I स्क्वायर आर। इफ यू पुट V इक्वल टू आई आर, और इफ यू पुट I इक्वल टू V बाई आर, if you put I equal to V by R, this can be V square by R. These all are the different forms of the same formula. Power equal to V into I के ही अलग अलग ये forms है, right? So what is the unit of power? So unit of the power is basically watt. W-A-T-T and denoted by symbol capital W. What is 1 watt? 1 watt क्या होता है बेटा? तो 1 watt होता है कि अगर आपका कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका वोल्टेज है 1 वोल्ट, ये वोल्टेज कितना है 1 वोल्ट,
एंड इफ इट ड्रॉस द करंट ऑफ 1 एम्पियर, 1 वोल्ट रेटिंग वाला डिवाइस है जो 1 एम्पियर करंट खींच रहा है, तो 1 × 1 कितना होगा 1, सो द पावर कंजम्पशन कैन बी कॉल्ड एज 1 वॉट. ओके, सो वी कैन से इफ 1 एम्पियर करंट flows through the device having potential difference of 1 volt, potential difference of 1 volt, then the power consumed is 1 watt. Power consumed is 1 watt. Okay, remember one more thing, 1 watt is 1 joule per second. 1 watt कितना होता है बेटा? 1 watt होता है आपका 1 joule per second. 1 watt is 1 joule per second. That means अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में हर एक सेकंड में 1 जूल एनर्जी यूज हो रहा है तो उसे हम कहेंगे 1 watt. So there are some other units of power also, that is kilowatt. किलो का मतलब होता है 1000 watt. These are some larger units of power, kilowatt, right? Similarly, megawatt भी होता है. Mega is 10 power 6 million watt, is called as megawatt. Now, what is a commercial unit of energy? Important है ये commercial unit of energy. आपके घर पे जो बिल आता है ना, आप, मुझे पता है आपने कभी उसको देखा तक नहीं होगा. आपके घर पे जो इलेक्ट्रिक बिल आता है, चैलेंजिंग यू, आपने कभी देखा भी नहीं होगा किस तरह से बिल निकलता है, क्या है वो है. तो हमारे घर पे जो बिल आता है ना, वो बेसिकली यूनिट के फॉर्म में आता है. कि कितना यूनिट आपने एनर्जी यूज़ किया, 10 यूनिट यूज़ किया, 12 यूनिट यूज़ किया, तो व्हाट इज दैट यूनिट? तो दैट 1 यूनिट इज 1 किलोवाट आवर. 1 यूनिट इज व्हाट? 1 किलोवाट आवर. 1 यूनिट इज 1 किलोवाट आवर. ओके, नाउ लेट्स कन्वर्ट दिस टू जूल. सो किलो इज 1000, किलो इज 1000 वॉट, किलो की जगह 1000 लिखा, एंड आवर इज 36. ओके, 1 आवर कितना होता है? 3600 सेकंड. आवर कितना होता है? 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होता है ना. तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 3.6 × 10 पावर 6 जूल. सो 1 यूनिट इज 3.6 × 10 पावर 6 जूल. 1 यूनिट क्या है भाई? 1 यूनिट है 3.6 × 10 पावर 6 जूल. तो जब आप इतना एनर्जी यूज़ कर लोगे ना, तो आपका मीटर जो है वो 1 यूनिट जितना घूम जाएगा. कितना घूमेगा? मीटर जो है वो 1 यूनिट जितना घूमेगा. अगर मान लो आपके घर पे एसी है, सपोज आपके घर पे एसी है और एसी का रेटिंग जो है ना, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल, अगर एसी का रेटिंग जो है वो सपोज मान लेते हैं कि 500 वॉट का एसी है, बराबर. ओके, और ये एसी को सपोज हमने चालू रखा 4 घंटे के लिए. अगर ये एसी को हमने 4 घंटे चालू रखा, ओके, तो कितना यूनिट यूज़ हुआ? कितना यूनिट यूज़ होगा? लेट्स फाइंड कितना यूनिट यूज़ होने वाला है वो. ठीक है, सो हियर द यूनिट इज बेसिकली व्हाट? एनर्जी. एनर्जी क्या होता है? पावर इनटू टाइम. एनर्जी क्या होता है भाई? एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम. ठीक है, आपके एसी जो है वो कितना पावर खींचता है? 500 वॉट. और कितना टाइम के लिए चला है वो? 4 घंटे के लिए. तो ये हो गया आपका बेसिकली 2000 वॉट आवर. अब मुझे जो चाहिए ना यूनिट के अंदर, वो यूनिट में क्या होता है? किलो वॉट आवर होता है. क्या होता है यूनिट में? किलो वॉट आवर होता है. अभी मेरा आंसर वॉट आवर में है, कोई बात नहीं, किलो वॉट में कन्वर्ट कर लेंगे, बहुत सिंपल है. डिवाइड बाई 1000 करो, कितना हो गया? 2 हो गया किलो वॉट पर आवर. क्योंकि 1000 का मतलब क्या होता है? किलो. तो 2000 कैन बी रिटर्न एज 2 किलो. तो ये हो गया आपका 2 किलोवाट आवर. किलोवाट आवर इज यूनिट. ओके, तो आपने कितना यूनिट यूज़ कर लिया बेटा? आपने यूज़ कर लिया 2 यूनिट. और 2 यूनिट का जो बिल होगा, पर यूनिट का जो भाव होगा, वो आपको चुकाना पड़ेगा कंपनी को. राइट. सो व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड इन किलोवाट आवर, आपको यही करना है. आपको क्या करना है बेटा? पावर जो है ना, आपको किलोवाट में कन्वर्ट कर लेना है, और टाइम जो है वो आपको आवर में कन्वर्ट कर लेना है, एंड देन मल्टीप्लाई पावर एनर्जी इनटू टाइम. You will get your answer in the unit of unit. In the unit of unit, क्या कह सकते हैं? In the unit of unit you will get the answer. Okay, चलिए. Now one more thing, आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट चलता है, सो आपको बेसिकली ऐसा लगता होगा कि it must consume electron.
कब पंखा चले या लाइट चले तो वो क्या करेगा, बेसिकली इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करेगा, और जो आपका पावर सप्लायर होगा, टोरेंट हो या जी भी हो, वो आपको इलेक्ट्रॉन भेजने का काम करेगा, वो इलेक्ट्रॉन आप यूज़ करोगे। इज इट लाइक दिस? इज इट लाइक दिस? नो, इट इज़ नॉट लाइक दिस। देन द थिंग इज, जो सप्लायर है ना वो आपको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा एट हाई एनर्जी, राइट। आप जब इंस्ट्रूमेंट में से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करोगे ना, तो आप इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है उसको पूरा यूज़ कर लोगे, और इलेक्ट्रॉन बेचारा एनर्जी के बिना आप बाहर फेंक दोगे। वो बाहर फेंका हुआ इलेक्ट्रॉन जब वो वापस पावर सप्लायर के पास जाएगा, वो वापस उसको एनर्जाइज करेगा और आपके पास भेजेगा। तो आप इलेक्ट्रॉन कंज्यूम नहीं कर रहे हो, यू आर कंज्यूमिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वी आर नॉट कंज्यूमिंग द इलेक्ट्रॉन, वी आर कंज्यूमिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड वी आर पेइंग फॉर दैट। We pay to consume the energy of the electron, not to consume the electron. Electron consume नहीं होता है, करेंगे? ओके, चलिए कॉपी करेंगे इसको क्विकली। Okay, let's solve two numericals. Example number 12.12 is an electric bulb is connected with a 220 volt generator. So we have the voltage given, V is equal to 220 volt, and the current is given, that is I, 0.50 ampere. You want to find what is the power, right? So basically the power is equal to V into I, where the voltage is 220, I is 0.50, it is 110, unit याद रखना watt, or you can also write capital W. So power is equal to 110 watt. How much power is it using? The power used is 110 watt. Simple formula रखना था आपको। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चों, क्या दिया है आपको। Electric refrigerator rated at 400 watt. What is the unit of power? The electric generator has the power rating of 400 watt. ये किसका रेटिंग है बच्चों? पावर का रेटिंग है। So we are given the power rating as 400 watt. ठीक है, it is operated for 8 hour a day. 8 hour a day means the time is given. The time is given is 8 hour per day. हर दिन में 8 घंटे चलाना है रेफ्रिजरेटर, राइट? And what is the cost to operate it for 30 days? तो 30 दिन में कितना टाइम चलेगा, पहले ये सोच लो। सो 8 आवर पर डे है, इंटू 30 कर लो, दैट इज टोटली 240 आवर इट विल वर्क। सिंपल लॉजिक है ना, हर एक दिन में 8 घंटे चल रहा है, 30 दिन चलाना है तो कितने घंटे चलेगा? 240 आवर चलने वाला है। ओके, यू वांट टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इट फॉर 3 रुपीज़ पर किलोवाट आवर। मतलब 1 किलोवाट आवर दैट इज 1 यूनिट। 1 यूनिट का भाव कितना है? 3 रुपये है। तो आपका बिल कितना आने वाला है वो आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करेंगे हम? बेचा बिल कितना आने वाला है वो फाइंड करें, बहुत सिंपल है। चलिए तो हम ये फाइंड कर लेते हैं कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है। सो आई विल राइट हियर एनर्जी कंज्यूम्ड, राइट। सो एनर्जी क्या होता है बेटा? पावर इनटू टाइम। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम। यस और नो? ऑब्वियसली यस, एनर्जी इज पावर इनटू टाइम, देयर शुड बी नो डाउट इन दैट। ओके, नाउ व्हाट इज द पावर रेटिंग? पावर रेटिंग इज 400 वॉट। अब ध्यान से देखो, मुझे यहाँ पे किलोवाट में चाहिए जो भी आंसर है वो। So 400 watt, I will divide with 1000. This is going to become 0.4 kilowatt. This is going to become what? 0.4 kilowatt. 400 watt is 0.4 kilowatt. So it is going to become energy is equal to 0.4 kilowatt. And the time we need in hour only, this is also in hour, 240 hour. So this is going to become 96, right? Kilowatt hour. ओके, सो वी आर यूजिंग टोटल एनर्जी ऑफ 96 किलोवाट आवर। हमने इतना एनर्जी यूज़ किया 96 किलोवाट पर आवर। अब एनर्जी का भाव क्या है बेटा? एनर्जी का भाव है 3 रुपये पर किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर के 3 रुपये है, तो इतने के रुपये कितने होंगे? इंटू 3 कर दो। सो आई विल राइट हियर कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 3 रुपीज़ इंटू, अब मैंने कितने किलोवाट आवर यूज़ किए? 96 किलोवाट आवर। 96 इंटू 3 कितना हो जाएगा? दैट इज़ 288 रुपीज़। इतना आपका बिल आ जाएगा। कितना बिल आएगा? रेफ्रिजरेटर यूज़ करने का बिल आएगा आपका 288 रुपीज़। ओके, 288 रुपये आपका बिल आएगा रेफ्रिजरेटर यूज़ करने का। तो सोच समझ के यूज़ करना, जो भी इंस्ट्रूमेंट घर पे यूज़ करो ना, ईच एंड एवरीथिंग विल एड अप। ओके, और ये रेफ्रिजरेटर और एसी जो है ना, वो दिस डिवाइसेस कंज्यूम वेरी हाई एनर्जी। ओके, बेसिकली ऐसा होता है कि जिसके घर पे एसी होता है और जिसके घर पे एसी नहीं होता ना, उसके बिल में, मंथली बिल में लगभग 1000 से 1200 रुपये का फ़र्क आता है। तो अब सोच लो एसी जो है वो कितना एनर्जी कंज्यूम करता होगा। ओके, तो सोच समझ के यूज़ करने का, जो भी एनर्जी आप यूज़ करो होगी, पे आपको ही करना है ना। आपको मतलब आपके पेरेंट्स हैं, है ना।
तो सोच समझ के थोड़ा सा यूज़ करने का, इतना ध्यान रखने का। मनी बिलोंग टू अस, मनी बिलोंग टू अस बट रिसोर्सेज बिलोंग टू सोसाइटी, राइट। पैसे भले आपके हैं बट जो एनर्जी आप यूज़ कर रहे हो ना दैट इज़ ऑफ सोसाइटी, सो बी केयरफुल, उसको वेस्ट नहीं करना है। चलिए तो यहाँ पे आपके ये चैप्टर के सारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं। ओके, कल हम करेंगे इसके एडिशनल क्वेश्चंस, दैट इज़ फ्रॉम द इंटेक्स क्वेश्चन एज वेल एज द एक्सरसाइज क्वेश्चन हम चालू करेंगे कल से। और उसके बाद तो आपका फिजिक्स पार्ट में खाली एक ही चैप्टर बाकी बचा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, लेट्स सी। चलिए अभी इसका ख़त्म करके आप मीटिंग को लीव करोगे। वी विल मीट टुमारो अगेन।